Now here, as we are doing these topics related to power sharing, what are the different forms of power sharing? The first you have mentioned that horizontal division of power. Now here, when we say what is horizontal division of power, then you will say that the government which is related with each other, like legislature, executive, and judiciary, all the three have unlimited powers, and they check the others, which is also defined as checks and balances. Now, checks and balance means that when you do these work, the government. Now, write in your copy, what is horizontal division of power? It is the sharing power among the, write it, it is the sharing of power among different organs of the government. As you can mark it in your book also, the division of government into executive, legislative, and judiciary. Market, the government, which is having judiciary, executive, and legislature. These three are under the horizontal division of power. Then again, the power sharing arrangement is made in such a way, mark again from your book, the power sharing is such a way that it exercises unlimited power. Each organ checks the other. यहाँ पे कॉमा देकर लिखो और पैराग्राफ में इसको ब्रैकेट में कर दो. Thus it is also known as checks and balance. है ना? Each organ checks the other, thereby putting a place to the system of checks and balances. Under 2 marks question you will अगली कितना वाईफाई तुमने स्कूल वालों ने किया है. उधर करते हैं ना साइड में, तो 10th वाला में अभी नहीं होता है, 9th में. यहाँ पे तो दिक्कत हो रहा है. Now, second important term you will write power shared among the vertical division. So the local self-government will be there, and the last will be the serial wise, grade wise. First will be the central government, then it will be the state government, and then local self-government, which will be known as the vertical division of power. Now, vertical division of power, it means that the entire government of the country, whatever level it is, like in India, we have 3 levels, and the various state government, there are matters on which only the central government can take decision. Then the state government will take decision on their state matters, which comes under the state list. And third will be the local self-government. Social groups. Division of power among social groups. Here you will say that community government, like we have majority and minorities, women also. So we have number of majority groups, like one majority group in India, and number of others are in minorities. So there will be a tension if more power will given to the majority. So the government has divided the power upon
according to जो पावर मेजॉरिटी को दिया गया, सेम वही पावर्स माइनॉरिटीज के पास भी है. तो पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटीज, एज यू हैव सीन इन द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम. Civil war in Sri Lanka, and this civil war in Sri Lanka led to the downfall of economy and administration, or you can say overall development of Sri Lanka led to decline. Now the fourth one will be the division of power between political parties, social groups and movements. देखो ये तीनों का जो नाम बोले, ये कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सरकार बनाता है. ये सरकार जो बना, ये कोलिजन गवर्नमेंट भी बन सकता है. बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी शेयर करता है. पावर शेयरिंग मतलब क्या हुआ, सब अपना अपना पावर को शेयर करता है और गवर्नमेंट को बनाता है. इसको कहा गया all the political parties will hand together to form the government. Now, pressure groups and movements are not political parties. They work independent political parties. But we will find one thing, that these pressure groups and movements take indirect support from the political parties. So without indirect support or without support, the people can't fulfill their demands. Government or political parties have to involve in it, but pressure groups and movements NGOs है. तो NGO कहा जाता है कि ये एक तरह का तुम्हारा पूरा करता है. और किसके हेल्प से करता है, तो वो इनडायरेक्टली सपोर्ट लेता है गवर्नमेंट का और तब सारे डिमांड्स को पूरा करता है. इसलिए इसको कहा गया प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है. तो इंडिया में इतने वास्ट मेजॉरिटी, इतना वास्ट पॉपुलेशन है, huge population, that it can't be fulfilled by one political parties. There will be a pressure groups, there will be a movements. Movement चलते हैं ना, फेमिनिन मूवमेंट, ये मूवमेंट हमेशा चलते रहता है. और वुमेन से रिलेटेड जितने डिमांड्स हैं उनको वो में they go for all the demands of the women. ये मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट है ना. जो एक डिमांड को लेके आगे बढ़ा और जैसे ही डिमांड पूरा हुआ, वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, मूवमेंट चलता रहेगा. फिर आगे जाके वुमेन का प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको लेके आगे बढ़ेगा. तो इसको कहा गया लॉन्ग टर्म मूवमेंट. ये डिमांड जो पूरा कराया वो किससे कराया, तो इनडायरेक्टली दे हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसी तरह से होगा शॉर्ट टर्म मूवमेंट. शॉर्ट टर्म मूवमेंट से नेपाल के मूवमेंट को कहोगे, दैट द नेपाली पीपल वेयर ऑन द स्ट्रीट came there. When the Nepal people came to democratic government there, that the movement came to an end. उस मूवमेंट का नाम था शॉर्ट टर्म मूवमेंट, क्योंकि वो सिर्फ मूवमेंट शुरू हुआ था वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए. तो जैसे ही वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, मूवमेंट खत्म हो गया. इसको शॉर्ट टर्म मूवमेंट कहा गया. इसमें सारे पीपल इन्वॉल्व हो गए, तो इसको कहा गया मूवमेंट्स. तो डेमोक्रेसी को जब हम पावर शेयरिंग बोलते हैं तो हम पावर शेयरिंग पीपल के साथ करते हैं.
क्योंकि हम लोग शेयर करते हैं तभी हमारी गवर्नमेंट बन रही है। शेयर क्या करते हैं? राइट टू वोट को, है ना? तो इट इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज so those who are interested in politics, they only involved in formation of the government. Now you have to write the last most important question I'm giving. It may come in your pre-board examination. Write down, state one prudential reason. State prudential, don't write one. Just write, state the prudential reason and moral reason for power sharing. Explain the prudential reason and moral reason of power sharing in democracy. हो गया? तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर मन है तो लिख लो। जैसे फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ वेरी power sharing is the very, are you writing? लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes. Power sharing is the very spirit of democracy. Okay. Second point लिखो. The prudential reason for power sharing helps to maintain. यही आंसर को याद करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The prudential reason for power sharing. The prudential reason for power sharing helps to maintain harmony among all social groups and ensure political stability in the country Third point, right? In India, as seats are reserved in legislature for socially weaker section or social in like SC, ST and women, keeping in mind the prudential reason for power sharing. Keeping in mind this prudential reason of power sharing. Prudential reason को underline करो. Second topic लिखो the moral reason. Write the moral reason, underline it, and then write the very act of power sharing. Under moral reason, write it emphasizes the very act of power sharing as valuable. Very act of power sharing as valuable. Second point, right? The citizen have a right to set up a democratic government. Third right,
In India, the citizens had come together. In India, the citizens can come together to debate, criticize the policies, and decisions of the government. Criticize the policies and decisions of the government. On the government to rethink its policies, to reconsider its decision, Last click, the active political participation. This active political participation is in keeping with the moral reason for power sharing. The moral reasons for power sharing. Now come to the next page and next topic, chapter 2. We are going to revise what is federalism. The first question you will write here, what is federalism? Mark in your book. Now federalism chapter means the two or more level of government. अगर कभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखने आता है कि what is federalism, you will write it not two level of government. You will not write like that. You will write that two or more level of government is defined as a federal form of government. Two or more level जब हम बोले इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर इसको हम बोलते हैं तो ये हो गया प्योर फेडरलिज्म, है ना. 3 लेवल गवर्नमेंट. तो इसको लिखोगे हमेशा two or more level of government is defined as federalism. Right? कभी कभी देखोगे कि किसी कंट्री में यूनिलैटरल होता है, किसी कंट्री में बाइलैटरल होता है. तो हम लोग का ना 3 टायर है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. तो फेडरलिज्म के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है. कहा जाएगा कि फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोलो, कैसे ये वर्क करता है, या इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका बोलो, कैसे ये काम करता है. की फीचर है ना. तो की फीचर में सबसे पहले डालोगे कि ये हमेशा इलेक्शंस को हेड करता है. फेडरलिज्म में हमेशा इलेक्शन होगा. दूसरा होता है देयर फर्स्ट पॉइंट डालोगे देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. 2 और मोर लेवल जहां लिखे ब्रैकेट में तीनों गवर्नमेंट का नाम लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तुम्हारा आंसर एकदम क्लियर हो गया. सेकेंड फीचर जब मेंशन करोगे तो सेकेंड फीचर में डालोगे दैट डिफरेंट टायर्स, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों टायर गवर्नमेंट है हमारे पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीनों है. ऑर्गन्स भी है, 3 लेवल्स में भी है. तो अब इसमें कैसे फंक्शन करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीनों का फंक्शंस डिवाइड कर दिया. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पावरफुल बनाया और उसको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट दे दिया कि जिसपे वो लॉ बना सकता है. लाइक 97 सब्जेक्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, है ना, सिर्फ उसी पे बनाएगा. उसके अलावा अगर वो स्टेट में जाता है तो स्टेट लिस्ट में देखोगे 66 सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाता है. उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा, ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास जाओ तो वो पंचायती राज को लेकर बैठा हुआ है. वो अपना पंचायती 5 विलेज मिलाकर जैसे जैसे पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से वो पंचायती राज बनाता है. तो अगर हम ये सारे को डिफाइन करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स तो लिखोगे दैट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन लेवल ऑफ वर्क, ज्यूरिसडिक्शन इसको कहा गया, और ये हर को बांटा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
एक लिस्ट है जिसको कंकरेंट लिस्ट कहा गया. Concurrent list में 47 subjects are there, and central government and state government both can make laws there. But when there is a tension between them, then the central government power is very strong, so the central power will prevail. है ना, वही रहेगा. अब अगर तुम रेसिड्यूरी पावर में जाओ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से दिया गया, इट रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे इंडिया जब डिवाइड हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय हमारे कंट्री में बहुत सारा नया नया लॉस बनने का था कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा, नंबर ऑफ न्यू अचीवमेंट्स विल बी मेड इन इंडिया. तो वो जितना न्यू अचीवमेंट होगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन होंगे, दैट लॉज होगा, it will be handled by the central government. It resides in the hand of central government. For example, one topic I am giving you, computer science. This computer came after independence, after the formation of constitution. So whenever the laws or whatever problems arises from that social media which you say, this problem is handled or reside in the hand of central government. So it makes the central power more supreme. इसलिए देखो सेकेंड की फीचर में है कि हमारा 3 लेवल गवर्नमेंट है, लेकिन तीनों का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है ना. तीनों एक दूसरे में इंटरफियर नहीं कर सकता है. दे इंटरफियर ओनली व्हेन देयर इज अ टेंशन ओवर कंकरेंट लिस्ट. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेंशन है. So the existing and each tier government constitutionally. अब अगर हमको चेंज भी करना है कुछ भी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज को अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, और उस पे कोर्ट का मुहर लगना बहुत जरूरी है कि कोई भी लॉज अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, चेंज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेंडमेंट करता है, देन इट हैज टू बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर. कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया, it is strictly followed by the people. Fourth feature बात करो, अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस बनाना है, प्रोविजंस मींस लॉ बनाना है, नया ऐड करना है, या किसी बनाए हुए लॉज को चेंज करना है ना, या उसमें कुछ नया क्लॉज ऐड करना है, तो कोई भी लेवल का गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनिलैटरली नहीं कर सकता है. यूनिलैटरली मतलब वन साइडेड. Both the level of government have to involve in it. It has to be done bilaterally. That is two level. Courts have the power to interpret the constitution. आप देखो ये जितना लॉस वो बनाए, हम तुमको शुरू में ही बता दिए कि कोर्ट का मुहर लगना जरूरी है. तो जितना भी लॉस बनेगा, it has to be passed under the orders of the court. That is known as the jurisdiction of the court. The highest court is known as the apex court or the Supreme Court. Act as what? As a guardian or as an umpire to the central government or the state government whenever any disputes arise. तुम लोग तो 9th क्लास में बहुत सारे disputes पढ़े थे, जिसमें मंडल कमीशन एक बहुत बड़ा था, जिससे पूरे कंट्री में रिवोल्ट हो गया था. So how that problem was solved by Indra Swahini case, you have come across these, and whose power prevailed, and you have explained and you have read that the power of the central government prevailed there, and Mandal Commission with 27% reservation came to be introduced in India. SEBC, socially and educationally backward classes के लिए वो implement हो. अब इतना सारा लॉस है, इतना सारा फीचर्स है फेडरलिज्म का, जिसमें लास्ट एक पर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. अब रेवेन्यू पैसा सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेयर करता है स्टेट के साथ, और स्टेट शेयर करता है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ. ये तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. जैसे एक रेलवेज को ले लो, स्टेट टू स्टेट रन कर रहा है, लेकिन इसका फ्लाइट्स एंड फेयर्स जो आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इससे जो प्रॉफिट होता है, इट विल गो इन द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट.
and this feature makes the central government very powerful in the field of revenue. है ना? अब डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे डिवाइड करता है इस प्रॉफिट को, और उसको करना ही है। कुछ पैसा वो प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट को देगा और कुछ वो स्टेट गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देगा। अब ये देखो 6 फीचर तुम पढ़ ली। अब 7th फीचर जो फेडरलिज्म का है वो सिर्फ यही कहता है कि अगर मेरा मन होगा तो हम उसको मानते हैं। इसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ द पीपल इज नीडेड, है ना? हमको ये चीज को फॉलो करना है, बिकॉज फेडरलिज्म इज फॉर अस the people of India, because constitution has given to the people of India. So अगर हम लोग आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ही हम ये फेडरलिज्म के सिस्टम को और फीचर्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज देयर विल बी एवरी टेंशन अमंग द इंडियन पीपल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और कभी कभी देखते भी हो लॉ एंड ऑर्डर फेल कर जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉज फेल कर जाता है, बिकॉज पीपल डजंट कोऑपरेट ईच अदर। जैसे लास्ट में मार्क करो, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। डुअल मींस 2 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज टू safeguard and promote the unity of the country, and second that the government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should trust each other. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास अगर करते हो तो वो तुम्हारा आसानी से आगे बढ़ते जाएगा। 5 years गवर्नमेंट चल जाएगी, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो देन द गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव विद इन अ डे ऑल्सो। 2-3 years के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो लास्ट फीचर जो तुम मेंशन करोगे उसमें सिर्फ ये लिखना, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ द एस्पेक्ट, ए म्यूचुअल ट्रस्ट and second agreement to live together. This is the most important features. इसको डबल टिक लगाओ और वहां पे क्वेश्चन लिखो, what are the important features of federalism? ये अगर याद हो जाए तो you can write all the 3 answers. Now next start. What is define coming together federation and holding together federation? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ मिलकर एक कंट्री को बनाते हैं। जैसे अमेरिका का एग्जांपल दिया है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। जो पीपल कैलिफोर्निया में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, दे हैव गॉट अ कैनेडियन सिटीजनशिप। उसके बाद उसको यूएसए का सिटीजनशिप है, अमेरिका का। तो इट इज नॉट ए यूनियन ऑफ टेरिटरी, इट इज ए टेरिटरी apart from each other making USA। अब एक हो जाता है coming together federation, ये हो गया यूएसए का, सब आपस में मिलाओगे तब यूएसए एक कंट्री बन। इंडिया का कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक धागे के से सारे स्टेट्स कनेक्टेड है। अब इसमें बताओ कनेक्शन के लिए गवर्नमेंट का क्या law, how we are connected with the central government? We say that central government is very powerful and we are defined as union of territory। मतलब सब यूनियन को मिला दो तो एक कंट्री इंडिया बन जाता है। अलग अलग नहीं, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, we have got single citizenship। We are not a citizen of Bihar and then we are citizen of India, no, we are a citizen of India only। We will not say we are Bihari, बिहार का सिटीजनशिप मिला हुआ है, नहीं, लेकिन हम लोग को एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। फॉर्म भरोगे एग्जाम में तो वहां पे लिखना लिखा रहेगा नेशनलिटी क्या है तुम्हारा, तो इंडियन लिखोगे, है ना। डुअल सिटीजनशिप नहीं हमारे पास। सेम उसी तरह से अगर हम बोले होल्डिंग टुगेदर है तो हाउ वी आर अटैच्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव नॉमिनेटेड गवर्नर्स इन एवरी स्टेट, और वो गवर्नर एक धागे की तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अटैच, वो प्रेसिडेंट का हाथ है।
हर लॉ एंड ऑर्डर को, फाइनेंशियल क्राइसिस को या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ही यूज टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल कर रहा है या बिहार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या हमारी सीएम या कोई भी गवर्नमेंट जो हमारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से लेकर आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहां पे तुरंत प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, नॉट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 8 मंथ्स के लिए लगेगा और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सीएम फंक्शन करना बंद कर देगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग गया विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नर, है ना। तो हम लोग कहेंगे इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और अमेरिका को बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सब मिला के एक टेरिटरी, ऑटोनोमस स्टेट है, हर स्टेट का अपना एक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेंट्रल से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए अब अगर हम कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और डिफाइन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑलराइट, नाउ कमिंग टुगेदर फेडरेशन जब भी बोलते हो तो अब उसमें लिखो वहां पे दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स, कंट्री का एग्जांपल दो, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये डिफाइन कर दो यहाँ पे व्हाट इज कमिंग टुगेदर। मार्केट, द फर्स्ट टू इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, गवर्नर अब नहीं है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स